Welcome to this episode of the Influencer Talks. Today we have Mr. Uday Sahai as our guest on the show. Uday Sahai is an ex-IPS officer, a communication expert, and a best-selling author. His last book, which he has published, which was released on April 21st this year, is Kayast, an encyclopedia of untold stories. So today let's talk to Uday Sahai on the challenges, on the experiences of his during writing of this new encyclopedia on Kayast community. उदय साहे जी, द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में आपका स्वागत है. यू आर वेलकम सर. थैंक यू माथुर साहब. ग्रेट टू जॉइन यू एंड योर ऑडियंस. थैंक यू सर. थैंक यू. उदय जी, आप ने एक वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया आफ्टर 21 years of your IPS services. For the last 10-12 years you are actually consulting as an expert communication professional, and you have already authored 8 books, if I'm not wrong. Correct. With the last one Correct. as the Kayast, an encyclopedia of untold stories, which was the one that you look at the back. Yes, at the back. True. So tell me, when did you begin with your journey as a writer? Was it during your IPS services or after that? Well, technically it started when I was in service on deputation to Prasar Bharati. Okay. From Delhi Police, I went on deputation to Prasar Bharati precisely in 2001, and it was completely a new world to me because I found I was visiting as a senior officer the newsrooms, I was visiting the producers, the meetings, etc. Right. So I realized that out of the entire spectrum, the news world actually fascinated me quite a bit. And I'm sure most of us who get exposed to the world of media, news media becomes very, very, attractive proposition to observe. Right. तो जब वो हुआ तो मुझे लगा कि इसका जो कार्डिनल या सेमिनल क्वेश्चन है वो है what makes news. And I started talking to a lot of people, and they would give some professional answers, certainly. Right. लेकिन एक समुचित जवाब या well-rounded reply I could not. Right. So I thought might as well, make it a central question and create a book. Okay. पहली किताब मैंने जो लिखी वो न्यूज मीडिया पे थी और उसका नाम था मेकिंग न्यूज. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस was kind enough to see the content and they decided to publish. तो ये किताब 2007 में छपी और फॉर्मल यात्रा की शुरुआत तो वहां से हुई. लेकिन एज यू नो कि फॉर्मल के पहले एक इनफॉर्मल लेयर्स क्रिएटिविटी की हमेशा आपकी जिंदगी में होती है. और मैं आपको ले जाना चाहूंगा बैक टू मिजोरम डेज, जहां हमारी पोस्टिंग एक ऐसी जगह पे हुई थी जिसे मिजोरम ऑफ मिजोरम कहते हैं. और वहां पर मिजो ऑफिसर्स वुड आल्सो बी लिटिल रिलक्टेंट टू गो बिकॉज इट वाज अ वेरी वेरी remote area, and with 3 tribes who were minority tribes of Mizoram, and surrounded by a location which was surrounded by. Sir, your video has gone. Yeah. Can you just surrounded by Bangladesh on one side, okay, and Burma on the other. तो मैं इन्फिल्ट्रेशन पर ऑब्जर्व करने लगा, उसको नोट करने लगा. Alright. और नोट करके एक लंबी आर्टिकल हमने लिखी, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन मिजोरम विद स्पेशल रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट आई वाज सर्विंग. और वो एक बड़ी प्रेस्टिजियस जर्नल है, वहां छपी. और उस समय निखिल चक्रवर्ती आपने सुना होगा, एक बड़े जर्नलिस्ट थे और बहुत रेस्पेक्टेबल उनका प्रोफाइल था एज अ जर्नलिस्ट. पता नहीं कहाँ से उनके हाथों में वो आर्टिकल पड़ी
और उन्होंने एक लंबा सा पत्र हमें लिखा उस जमाने में, मैं जब मिजोरम में एसपी था। जी, और वो बड़ा इंस्पायरिंग था, बिकॉज मुझे लगा कि इतना सच अ ही वाज लाइक अ फादर फिगर टू अस, राइट, प्रोफेशनली स्पीकिंग, इवन एज अ राइटर। तो राइट, मुझे लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ उनको दम दिखा होगा, तभी उन्होंने इतनी पेन लिया इतनी लंबी चिट्ठी लिखने का। तो शुरुआत मैं समझता हूँ वहां से हुई, कल्मिनेट हुई किताब में जब मैंने प्रसार भारती ज्वाइन किया, मेकिंग न्यूज छपी, और जी, फिर तो यो यात्रा चलने लगी। और वहां से प्रसार भारती के बाद मैं दिल्ली सरकार गया। राइट, वहां मैंने डायरेक्टर इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का मैं हेड बना। ओके, और लाइक अ स्टूडेंट आई वाज नॉट सर्विंग देयर एज एन ऑफिसर, आई वाज ट्राइंग टू लर्न कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सेक्टर है क्या, राइट, जिसका एक पार्ट न्यूज था, हम्म, एडवर्टाइजिंग था, पीआर था, डिजाइनिंग था, they were all number of skill sets, as you understand. राइट, So like a student I spent my 3 years there, and subsequently the government of India wanted to send me to Goa, because deputation का period वो खत्म हो रहा था। ओके, and I took a call कि शायद, जिसको मैं नॉर्थ स्टार वर्ड से I जी, started looking at my North Star कि मेरी जी, जिंदगी की दिशा क्या है, राइट, पूछने लगा, और यात्रा चल पड़ी। और आज ये 8वीं किताब आपके सामने है, क्या बात, जो मेरे पीछे है, कायस्थ एंड encyclopedia of untold stories. राइट। Yes. So when did you actually got this idea to write on the Kaist community? Everybody knows you are also a Kaist, but writing in this kind of encyclopedia, so how did it occur to your mind? Yeah, actually, after having written about 6 to 7 books, Yeah, uh, this was a time in life when I was a little subtle. yeah, एंड जो जिसको आप कहते हैं फिजियोलॉजिकल नीड और सिक्योरिटी नीड्स आपकी एड्रेस yeah, मोटे तौर पे हो चुकी थी। और थोड़ा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या हायर नीड होता है, वो mm-hmm, हॉन्ट मुझे करने लगा था। हु आर यू, हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, हमारी रूट्स क्या हैं, वगैरह वगैरह। और मुझे लगा कि कहीं इन सवालों को से मुझे ग्रैपल करना चाहिए। जी, और थोड़ा जब ग्रैपल किया तो लगा कि ये पूरी की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन है इस कम्युनिटी की, वो जी, इतनी, एक तो इनकी इनकी हेरिटेज इतनी पुरानी है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही स्कैटर्ड। right, और उसने मुझे इंस्पायर किया कि मे बी दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू द कम्युनिटी। अपने mm-hmm, परिवार के लिए किया, अपने लिए किया, लेकिन कम्युनिटी एज सच के लिए कुछ कॉन्क्रीट करने का कभी अवसर नहीं मिला। एंड आई थिंक आप वही कर सकते हैं जो थोड़ा आपके पास है। मेरे पास स्किल सेट लिखने का उस समय तक आ चुका था, जी, 6 किताबें मेरी छप चुकी थी, तो मुझे right, लगा कि ये राइट जोनर है जिसमें लिख सकता हूँ मैं। right, यात्रा शुरू की तब तब मैं अकेला था। जी, और कुछ महीनों के बाद पूनम, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हमारी कोलीग थी। right, अभी वो क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका में पढ़ाती हैं बतौर प्रोफेसर। जी, तो वो आई हुई थी दिल्ली। जी, तो जब दिल्ली आई तो उनकी मदर यहाँ बुरी तरह बीमार थी, ऑलमोस्ट लास्ट डेज में। right, तो वो आके मिली, एक पुरानी मुलाकात की तरह वो मुलाकात हुई। मैंने ब्रोच किया कि पूनम, एंड शी वाज पूनम बाला सक्सेना। okay, तो हमने उससे कहा कि पूनम, इसको मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरह खड़ा करना चाहता हूँ, right, और व्हाई डोंट यू आल्सो जॉइन इन। तो लाइक अ सीजन्ड एकेडमिशियन दैट शी इज, जी, उसने तुरंत तो कुछ कमिटमेंट नहीं किए, लेकिन मदर से जाके ब्रोच किया। और मदर से ब्रोच किया तो मदर ने वर्चुअली, पूनम जैसा बताती हैं, जी, उनके हाथ पकड़ लिया और कहा कि बेटा, मैंने कभी तुम्हें किसी भी चीज के लिए गोड नहीं किया या डायरेक्ट नहीं किया कि यही करो, लेकिन ये एक ऐसा प्रपोजल तुम मुझसे शेयर कर रही हो जी, जहां मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर करना चाहिए। और दैट्स हाउ शी ज्वाइंड इन। और वो मेरी आज को ऑथर है, मैं लीड ऑथर हूँ इस जी, किताब का। जी, फिर कारवां बढ़ता गया, कई दोस्त लोग जुड़ते जुड़ते गए, गए, फोटोग्राफर्स आए, जी, इलस्ट्रेटर्स आए, पेंटर्स आए, बहुत जी, इसमें जी, एक्सपेरिमेंट्स हमने बहुत तरह की हैं राइट, जो आपको दिखेगी। जी, अ, अ, और वो का ऑर्गेनिक एक तरह से वो प्रोडक्ट मैं कहता हूँ उसको, हाँ, क्योंकि हाँ, प्रिंटिंग को छोड़ के
तमाम कंट्रीब्यूशन जो हैं अलग अलग तरह के, वो कायस्थ क्रिएटिव जी रिसोर्स पर्सन ही हैं इसमें। सर, आज अगर हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, तो जनरली जो युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स हैं, वो कास्ट सिस्टम या कम्युनिटी सिस्टम से हमको लगता है कि वो बाहर जा रहे हैं। मतलब हम उस पर इंटरकास्ट मैरिजेस भी ले सकते हैं, पढ़ाई या इस तरह का जो साहित्य रहा है उसका अभाव भी है कि लोग नहीं जानते हैं। जैसे मैं भी आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था कि अगर आज मैं कहता हूं कि मैं माथुर हूं और वो कहते हैं माथुर कौन होते हैं और मैं कहता हूं माथुर कायस्थ, तो लिटरली हमारे कलीग्स, हमारे फ्रेंड्स शायद 20% ये बोलते हैं कायस्थ कौन होते हैं। तो ये स्थिति में हम क्यों पहुंचे? जब मैं आपकी किताब को देखा है सरसरी तौर पे, अभी पूरा नहीं पढ़ पाया हूं, 3 दिन पहले मुझे मिली है, लेकिन इसमें अगर हम इसको पढ़ते हैं, हाईली एनरिचिंग। हम मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानता था कि ये चीजें कायस्तों में हैं, जैसे मंदिर हैं या डिशेज हैं। आपने इसमें एक्चुअली हर एस्पेक्ट को कवर किया है। तो व्हाई, हाउ डू यू थिंक कि लोगों में, आजकल के यंगस्टर्स में ये भावना आ रही है और ये किताब उनको किस तरह से उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए सहायक सिद्ध होगी? जी, इसको मैं इस तरह से देखता हूँ अतुल जी कि यंग जनरेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो मॉडर्न भी रहो और वो रूट से अपने जुड़ा भी रहे। तो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को एक पूरक के तौर पर वो अगर जब देखने लगते हैं तो उनका पर्सनालिटी अलग तरह से ग्रो करता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन यहाँ पर ऐसा हुआ है, उस एजुकेशन में हमारे दिमाग में एक पोलर वर्ल्ड बना दिए गए कि अगर आप रिलीजन की बात सोचते हैं, आप कास्ट की बात सोचते हैं, आप विलेज की बात सोचते हैं, तो आप ट्रेडिशनल हैं। आप ABC की बात सोचते हैं तो आप मॉडर्न हैं। ये जो एक तरह का बाइपोलर देखने का नजरिया उनका बना, तो उनको ये समझ में वो काफी कंफ्यूज होते हैं कि ये लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी हैं। आप एक परिवार में पैदा होते हैं, एक कास्ट में पैदा होते हैं, एक रिलीजन में पैदा होते हैं, एक गांव में पैदा होते हैं, फिर एक स्कूल जाते हैं, फिर एक कॉलेज जाते हैं, फिर एक जॉब ज्वाइन करते हैं सर्विसेज में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, मीडिया में, कहीं भी। तो कई लेयर्स ऑफ आइडेंटिटी से आपकी पर्सनालिटी गाइडेड होती है। अब ये लेयर्स एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप में नहीं है। यू कैन बी, फॉर एग्जाम्पल, मैं दो तीन कम्युनिटीज का एग्जाम्पल देता हूँ। लुक एट ज्यूज फॉर एग्जाम्पल। राइट, ज्यूज वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कम्युनिटी ही नहीं, कई मामले में वो काफी प्रोग्रेसिव हैं और बाकी कम्युनिटी से बहुत आगे हैं। लेकिन रूट्स के प्रति जो उनका अवेयरनेस है और जो जिस पैशन से उसको वो प्रिजर्व करते हैं, तो क्या वो ट्रेडिशनल हो जाते हैं, क्या वो बैकवर्ड हो जाते हैं, क्या वो रेट्रोग्रेसिव हो जाते हैं? इसी चीज को समझने की जरूरत है कि पारसी हो या ज्यूज हो या इवन सिख फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, इन तमाम में एक सेंस ऑफ रूट बड़ा स्ट्रांग है। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब शुरू में मैंने ये रिसर्च को शुरू किया, मुझे हैदराबाद जाने का चांस मिला, क्योंकि हैदराबाद में कायस्थों का एक बड़ा लॉट है जो 200 साल पहले माइग्रेट कर गया था नॉर्थ इंडिया से। वो माथुर्स भी उसमें काफी बड़ा एक चंक है। माथुर्स हैं, सक्सेना है, बाद में श्रीवास्तव भी गए। तो उस दरमियान हमारे एक सीनियर IPS ऑफिसर थे जो रिटायर हो चुके हैं, और उन्होंने ये ऑफर किया, इनवाइट किया कि उदय कम एंड स्टे विद मी, व्हाई शुड यू बी स्टेइंग इन अ होटल, बिकॉज यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट तुम्हें मिलेगा और शायद ऑब्जर्वेशन तुम्हारा और शार्पन होगा अगर यहाँ मेरे साथ रहोगे। तो मैं उनके साथ रहा 2-3 दिन, और उनकी वाइफ पारसी थी और बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, बहुत ज़हीन वहाँ के एक प्रोफेसर थी इंग्लिश लिटरेचर की। तो वो एक आध दिन तो मुझे वो जज करती रही, या जज नहीं, ऑब्जर्व करती रही कि मैं कितना सीरियस हूँ। जब उनको लगा कि सफिशिएंटली इसमें कमिटमेंट है अपने जज्बे को लेकर, तब तो उन्होंने अगले दिन मुझे अपने बेडरूम में ले गई, और बेडरूम में गॉडरेज का अलमीरा खोला और उसमें एक लाल कपड़े में लिपटी हुई किताब निकाली,
और उन्होंने कहा कि उदय, ये किताब आज से 40 साल पहले अमेरिका में प्रोड्यूस हुई थी और भारत में 70-80 हजार पारसी फैमिलीज हैं, उसमें से कम 50,000 फैमिलीज के पास ये किताब है। और शादियों में भी बच्चों को हम ये किताब इसलिए देते हैं ताकि वो अपने हेरिटेज को ना भूलें, अपने रूट्स को ना भूलें। और इसलिए मैं समझ सकती हूँ व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 2,500 years and 3,000 years of कायस्था's tangible and intangible heritage। तो ये मैं इसलिए अतुल आपको बता रहा हूँ कि इसको मुरली मनोहर जोशी के एक अवार्ड सेरेमनी में छोटे कोई अवार्ड मुझे वो दे रहे थे, और उसके बाद अवार्ड स्पीच में उन्होंने कहा कि जब हम यात्रा में होते हैं तो हमारा एक पैर जमीन पे होता है और एक पैर जमीन के ऊपर होता है। जमीन पर जो पैर होता है वो हमारा रूट्स है, और जो हमारा पैर जमीन के ऊपर है वो हमारे एस्पिरेशंस है। जब हम रुक जाते हैं तो दोनों पैर हमारे जमीन पे हो जाते हैं, और अगर दोनों जमीन के ऊपर हो गए तो हम जड़ों से खत्म हो जाते हैं। तो ऐसी मॉडर्निटी जो आपको जड़ों से काट दे, तो आप कट्टे पतंग की तरह हो जाएंगे। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि उनको आप अगर रिच हेरिटेज देते हैं डाउरी में या गिफ्ट में, तो उनको लगता है कि हमारे पास फॉल बैक करने के लिए मेमोरीज या बहुत कुछ है। ये किताब उस सेंस में आपको यह एहसास कराती है कि ये 2500 सालों में नॉट ओनली द बिग नेम्स, मंदिर है, हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, और उसकी वेरिएशंस हैं, कहानियां हैं, फ्रीडम स्ट्रगल में बड़े बड़े हीरोज हैं, और किसी भी फील्ड में, चाहे वो रॉयल्टी का के हों, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हों, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका बहुत बड़ा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, और वो उन्हें एक सेंस ऑफ रूट्स, सेंस ऑफ पर्पस लाइफ में certainly देता है। और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी एक कॉन्फ्लिक्चुअल वर्ल्ड नहीं है, वो एक पूरक वर्ल्ड है, इसका एहसास होता है। अच्छा उदय जी, ये बताएं कि इन ब्रीफ अगर हम ये पूछे कि कायस्थ कौन होते हैं, उनका ओरिजिन कहां से है, एक ब्रीफ में आप जरा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएंगे। जी, जो इस शोध में 2 साल के शोध में जो माइथोलॉजिकल एक कहानी है और हिस्टोरिकल दूसरी कहानी है, मैं पहले एक की बात करूंगा, फिर 2 की बात करूंगा ब्रीफ में। माइथोलॉजी वाइज जो पूरी पृथ्वी का इवोल्यूशन हुआ, यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ, उसमें आप पाते हैं कि 10 अवतार हुए, और उनका सबसे परिष्कृत या रिफाइंड फॉर्म में विष्णु हुए। विष्णु की नाभि से आप देखेंगे ब्रह्मा निकले, और ब्रह्मा का जो रौद्र रूप हुआ वो शिव हुए, और ये सुपर गॉड्स विष्णु, ब्रह्मा और महेश आपके सामने आते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि को रचने की जिम्मेवारी दी गई, तो उनके बॉडी से, की काया से कई अलग अलग 17 ऋषि निकले, और 18वें जो थे वो थे चित्रगुप्त, श्री चित्रगुप्त। और ये जो 18 सुपर क्रीचर्स का जन्म हुआ, उसमें जो अंतिम है वो है श्री चित्रगुप्त, और उनका जन्म उनके पूरे काया से हुआ। बाकी जितने मरीचि हैं और भी ऋषि हैं, वो उनके बॉडी के ए पार्ट, बी पार्ट से, ऐसी मान्यता है, ये बिलीफ है कि उनकी पैदाइश हुई, लेकिन श्री चित्रगुप्त उनकी पूरी काया से पैदा और एक खास स्थिति में पैदा हुए, और उनको जो काम दिया गया वो काम अकाउंटिंग की, आप लोगों के जो जितनी 84 लाख योनि हैं पाताल लोक में, देवलोक में, पृथ्वी लोक पर, उनका गुड डीड्स और बैड डीड्स का अकाउंट्स हिसाब का। और उसका इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि ये अकाउंट रखते वक्त केवल एक्शन वो अकाउंट फॉर नहीं करते थे, एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है वो अकाउंट फॉर करते थे, और ये बहुत बड़ा एक काम था। तो एक मेजर काम तो उनका ये दिया गया ब्रह्मा द्वारा,
और सेकंड काम उनको दिया गया एक तरह से रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। और रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी इमीडिएट फैमिली को छोड़ के बाकी तमाम देव ऋषि मानव और दानव सब पे उनका एक तरह का अधिकार हुआ। ये एक संरचना आपको माइथोलॉजी में मिलती है। वो जब अवतरित होते हैं हमारे पृथ्वी पे तो वो एक जगह है कायथा, आज भी है कायथा गांव, उज्जैन से 26 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि वहां अवतरित हुए, वहां तपस्या करके उन्होंने विधि विधान सीखा यूनिवर्स चलाने का। वहीं पर उसके बाद उनकी 2 शादियां हुई, उससे 12 बच्चे हुए। इन बच्चों को उन्होंने बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जिसको आज कहते हैं बेस्ट ऑफ गुरुकुल्स में भेजा पूरे कंट्री के। वो गुरुकुल्स जो हैं वो भी अकाउंटेंट हैं। जब वो लौट के आए तो जीविकोपार्जन के लिए उनकी शादियां नागवंश में हुई, तमाम 12 इन लड़कों की। और फिर उनको कहा कि अब आप अपने अपने दिशा में जाकर जीवन को, तो इंटरेस्टिंगली जो अलग अलग भारत के तरफ कोनों में वो चले गए। जो गौड़ एक बेटा था गया बंगाल, तो बंगाल को आज बंगाल आप कहते हैं, वो गौड़ प्रदेश हो गया। एक बेटा जो मथुरा की तरफ गया वो मथुरा से माथुर हो गए, जैसे आप हुए। एक बेटा कश्मीर की तरफ 3 बच्चे गए उनके। तो इस तरह भारत के अलग अलग हिस्सों में गए और 12 हिस्सों में जाकर वो सबकास्ट जो कायस्तों का देखते हैं वो बना। ये है माइथोलॉजी से जुड़ी हुई कहानी। अब मैं हिस्ट्री पे आता हूँ। हिस्ट्री थोड़ी रैशनल ढंग से अगर आप पूरे चीज को देखते हैं, ब्रीफ में बताऊंगा। तो शुरुआत होती है स्मृति और श्रुति परंपरा से। पूरा जो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन उस समय वो सोसाइटी थी हंटिंग गैदरिंग, जब आदमी घूम रहा था जंगलों में, वो एक जगह सेटल नहीं था। सेटल एग्रीकल्चर होने के बाद धीरे धीरे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ और स्टेट के फॉर्मेशन के साथ ही चीजों को कलमबद्ध करने की जरूरत महसूस हुई। तो एक जबरदस्त डिमांड क्रिएट हुआ चीजों को कलमबद्ध करने का। और उसी पीरियड में एक ओरल ट्रेडिशन या स्मृति श्रुति परंपरा में के जो एक्सपर्ट्स हुए वो ब्राह्मण्स हुए। जब कलमबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई तो कर्णम कास्ट एक कंसोलिडेट करके बना और ये जो कास्ट बना यही कालांतर में कायस्थ बन गया। तो आप चित्रगुप्त की परिकल्पना तो माइथोलॉजी की दुनिया में है, प्रोटो हिस्ट्री की दुनिया में है, लेकिन ब्राह्मणों द्वारा ओरल ट्रेडिशन को चलाया जाना वो हिस्ट्री की दुनिया में है। लेकिन एक्चुअल जो लिखित दुनिया शुरू होती है वो कर्णम द्वारा शुरू होती है, जो कालांतर में कायस्थ कहलाए और फिर कायस्थ कहलाए अलग अलग दिशाओं में गए। तो ये दो ओरिजिन की 2 कहानियां हैं और 2 कहानियों के पीछे एविडेंस है, लॉजिक है, एक संसार है। उस किताब में आपको दोनों का झलक मिलेगा। उदय जी, जब आप कायस्थ का एनसाइक्लोपीडिया लिख रहे थे ड्यूरिंग दिस कोर्स, जरूर कुछ सब क्षण ऐसे आए होंगे, कोई ऐसा हैपनिंग हुई होगी, इवेंट की लगा होगा अरे ये तो नहीं होगा, कोई ऐसी बात आपको याद हो कि अरे इससे आगे बढ़ पाना मुश्किल है, और फिर आपको कोई अचानक कोई ऐसा रास्ता नजर आया कि हाँ मिल सकती है और उस चीज को पूरा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो ड्यूरिंग? या बहुत जी अतुल जी, जब यात्रा शुरू हुई तो हर आदमी एक साइलो में जीता है। आप उत्तर प्रदेश के हैं या दिल्ली के हैं या राजस्थान के हैं, हम लोग बिहार के थे। तो एक बनी हुई थी धारणा कायस्थों के बारे में। उस धारणा को तोड़कर जब आगे निकलने की कोशिश करने लगे तो पता चला कि 3 तरह के कायस्थ। एक तो हिंदी पट्टी के कायस्थ जिसे हम चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ कहते हैं, वो हुए। महाराष्ट्र की तरफ आप जब जाएंगे तो दूसरे तरह के कायस्थ हुए जिसे चंद्र सेनीय कायस्थ प्रभु के नाम से जाना जाता है। बाल ठाकरे हुए, जनरल वैद्या हुए, ये सारे चंद्र सेनीय कायस्थ प्रभु कहलाते हैं। और तीसरे कायस्थ हुए बंगाल, उड़ीसा, असम, कुछ हद तक त्रिपुरा, जिसे चित्र सेनीय कायस्थ कहा जाता है। आप कहेंगे फर्क क्या है? फर्क ये था कि एक
जो हिंदी पट्टी के कायस्थ थे, ये डायरेक्टली चित्रगुप्त जी को अपना एंसेस्ट्रल गॉड मानते थे और मानते हैं। जी जी जबकि चंद्रसेनी कायस्थों में डायरेक्ट वो चित्रगुप्त की पूजा नहीं करते, उनके अस्तित्व को नकारते भी नहीं है, लेकिन पूजा नहीं करते। ओके वो अपने एंसेस्ट्रल चीफ चंद्रसेनी नाम के एंशिएंट ग्रेट राजा थे, उनको मानते हैं। बंगाल में जाएंगे तो वहां पे वंशावली की पूजा होती है, और वहां पे 20 जनरेशन, 25 जनरेशन, 30 जनरेशन, जैसे आपको वंशावली फैमिली ट्री जिसको कहते हैं, जी 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 वो कुल देवता का कॉन्सेप्ट है, हाँ और हाँ वो उसको एलोबरेटली मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और उसको पूजते भी हैं। तो 3 तरह के जब कायस्थ हैं, तब पहला पहला तो दिमाग खुला कि वो एक नहीं है, हाँ चित्रगुप्त तो जब तक आप पूजा नहीं करेंगे कायस्थ नहीं होंगे, ये बड़ा मिथ टूटा। जी जी और दूसरा टूटा कि केवल ये चित्रगुप्त वाले भी केवल नॉर्थ में हैं। जब मैं साउथ गया हाँ हाँ तो साउथ में कांचीपुरम में चित्रगुप्त स्वामी टेम्पल है, नेलोर रोड पे, और बहुत पुराना टेम्पल है, और जी वो चोला के समय, डायनेस्टी के समय बना हुआ टेम्पल है। जी सरकार उसका मेंटेनेंस करती है एंशिएंट टेम्पल के बतौर। ओके और वहां पर करुणागीर, जो कि कर्ण कायस्थ एक तरह के हुए, हाँ वो हाँ उसका देखभाल करते हैं ऑफिशियली। और ओके आपको जान ओके के आश्चर्य होगा कि जब हम लोग फर्दर डीपर जाने लगे तो पता चला कि तमिलनाडु में ही करीब करीब 13-14 चित्रगुप्त के टेम्पल्स हैं। ओ माय गॉड ये अच्छा कई जी वहां तमिलनाडु वालों को नहीं पता था। तो ओके ये जो माइग्रेशंस हुई हैं जी जी ओवर, ये 100 साल 200 साल पहले की माइग्रेशन नहीं है, ये माइग्रेशन हुई है 2500 साल पहले, 3000 साल पहले। इसीलिए वो कश्मीर से लोग आपको नीचे आते हुए दिखते हैं जी सेलम तक, हाँ आपको बिहार से जाते हुए दिखते हैं कर्नाटका, और उनको अकाउंट फॉर उस तरह से हमारे हिस्टोरियंस में नहीं किया। राइट और अब हिस्ट्री को देखने का नजरिया बदल रहा है, तो जी लोग कम्युनिटीज की हिस्ट्री को भी देखने लगे हैं। अदरवाइज उस समय एक हिस्ट्री को खास नजरिए से देखा जाता था, और ये चीजें मेजरली ओमिट हुई। जब आप कश्मीर अगर जाते हैं फॉर जी एग्जांपल, जी और वहां आपको पता चलता है कि कारकोटा डायनेस्टी अपने आप में 400 साल, एक 2 साल की डायनेस्टी नहीं थी। हाँ वो हाँ कायस्थों की डायनेस्टी 400-500 साल तक रही, और उसके फिजिकल रिमेन्स हैं। उनके बनाए हुए मार्तंड टेम्पल को देखेंगे आप, जी सबसे बड़ा सन टेम्पल है हिंदुस्तान का, तो वो एग्जिस्ट करता है अनंतनाग में। परिहासपुरा श्रीनगर से 32 किलोमीटर दूर आप जब जाएंगे तो रोमन एम्पायर के रिमेन्स की तरह वो आपको पूरे के पूरे खंडहर उनके दिखेंगे। तो ये जो विस्तार है जी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम बल्लभगढ़ गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, जी 21 राज्यों में उनका फुटप्रिंट मिला। ये अपने आप में एक बड़ा बहुत बड़ी एक्साइटमेंट। शुरू में लगा था कि अरे बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3-4 राज्य हैं, यही जी कायस्थ है। और आज भी आम कायस्थ के दिमाग में यही है यही जी भ्रांति बनी हुई है। जी जी जी, और कई बातें हैं, लेकिन मैं हाँ कुछ पे बहुत रोशनी कुछ डाल। जी अच्छा एक चीज मुझे आप ये बताएं सर कि ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं या ईटिंग हैबिट्स हैं, व्यंजन हैं जो कायस्थ कम्युनिटी को यूनिक बनाते हैं या दूसरों से अलग बनाते हैं। हर कम्युनिटी में अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं, सब कुछ है, लेकिन कायस्थ कम्युनिटी को क्या चीज यूनिक बनाती है? और यहां मैं अगर बात करूं अपनी जो हिंदी बेल्ट की आप बात कर रहे थे, उसको स्पेशली लेके। देखिए, फेस्टिवल में सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल तो नॉर्थ का जी चित्रगुप्त पूजा है, जिसको दवात पूजा भी दवात लोग कहते हैं। और यह यम द्वितीया, ये कार्तिक के महीने में जी मनाई जाती है। राइट उसके बाद अवतरण दिवस है, जब एक्चुअली चित्रगुप्त इस धरती पे आए, ऐसी मान्यता है। वो जो दिन है एक तरह का, उसको अवतरण दिवस कहते हैं, जी उसको जयंती भी कह सकते हैं, चित्रगुप्त जयंती। तो जी दो ये बड़े इंपॉर्टेंट डायरेक्ट मनाए जाने वाले फेस्टिवल हैं कायस्थों के। राइट एक दवात पूजा मैंने बताया कार्तिक के महीने में, जी जिस दिवाली के
एक दिन को छोड़ के दूसरे दिन मनाई जाती है, और दूसरा उनका अवतरण दिवस जिस दिन वो उतरते हैं ऊपर से। अब एक अवतरण का और भी आता है रेफरेंस। जी जब वो आए थे, ऐसी मान्यता है महाभारत काल में भीष्म पितामह को एक वीपन देने के लिए, उसको भी कुछ लोग अवतरण दिवस कहते हैं। जी बहुत मास उसमें फेस्टिवल नहीं होती, लेकिन इन फर्स्ट टू फेस्टिवल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चैत्र मास का जो उनका बर्थडे वाला पीरियड है, जी उसका इंपॉर्टेंस नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। एक्चुअली तमिलनाडु में उसे चैत्री पर्व के तौर पर एक महीना मनाया जाता है, और चैत्र मंथ, चैत्र चित्रगुप्त का रिलेशन चैत्र मंथ से है। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो चैती जो गाई जाती है, जी उसका रिलेशन चित्रगुप्त से है। और चैत्र मास जो है वो हिंदू कैलेंडर का पहला महीना भी है, जी हिंदू कैलेंडर का पहला महीना ही है भी है। तो ये कोर फेस्टिवल्स हो गए। सेकेंडरी फेस्टिवल्स में जैसे भाई दूज जिसको कहते हैं, जी भाई दूज चित्रगुप्त पूजा के दिन ही हाँ उसकी माइथोलॉजी है कि यमुना ने अपने भाई यम को आमंत्रित किया था, और चूंकि ये दोनों वहां पर स्वर्ग में यमलोक में होते हैं, जी उन्होंने चित्रगुप्त को भी आमंत्रित किया था। और उस दिन बहनें अपने भाई को बुलाती हैं, और उसको अलग अलग नाम से, बिहार में उसे किर्री खिलाई कहते हैं, राइट इधर भाई दूज कहते हैं, अलग अलग प्रांतों में के कायस्थ उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कायस्थों का है। आपको इसी रेफरेंस में बता दूं कि जो चार मेजर फेस्टिवल हैं, जी उसमें से चार मेजर टेम्पल्स हैं जिसे हम कायस्थ चित्रगुप्त सर्किट कहते हैं। जी एक अयोध्या में है, एक उज्जैन में है, एक पाटलिपुत्र यानी पटना में है, और एक कांचीपुरम जिसका जिक्र मैंने किया है वो है। उन तमाम जगहों पे ये बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी और सेकेंडरी टेम्पल भी आपको कई हैं, वहां भी इसे विस्तार से मनाया जाता है। तो ये हो गया फेस्टिवल। खाने का जहां तक सवाल है, तो ये बात सच है कि खाना, पीना और जी खाना हाँ दोनों हमारे मेजरली जिस हैबिटेट में हम होते हैं उससे राइट इन्फ्लुएंस होता है। राइट तो चूंकि कायस्थों का एक क्लोज रिश्ता रॉयल्टी के साथ रहा हमेशा, वो खुद राजा रहे, राजाओं के साथ रहे, जी ब्यूरोक्रेसी के टॉप पोजीशंस पे रहे, तो रॉयल्टी के फूड से बहुत एक हद तक कायस्थों का फूड, और इसीलिए खान पान में एक नजाकत है, एक नुआंसिंग है, एक लेयर्ड फूड हैबिट उनका आपको मिलेगा। अभी भी अमूमन परिवार में एक सब्जी से काम नहीं चलता, और थोड़ी भी प्रोस्पेरिटी है तो उसमें नॉन वेज होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक पार्ट तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और उसमें अगर आप प्रीता माथुर जी से बात करें, प्रीता माथुर जी की बड़ी मशहूर किताब है कायस्थों के खान पान पर। अभी वो पैन इंडिया कायस्थ कुजीन नाम के किताब पर भी काम कर रही हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत ऑथेंटिक, कई वर्षों की तपस्या उनकी उन किताबों में दिखती है। तो वहां पर वो तीन तरह का के फूड बताती हैं, स्टाइल मेथड्स बताती हैं। एक जहां तक मुझे याद है, भूनना, फ्राई जिसको कहते हैं। हाँ दूसरा स्मोक इफेक्ट क्रिएट करते हैं, आप खाने के ऊपर कोयले का एक पीस डालकर उसका स्मोक इफेक्ट होता है। तो तीन तरह का वो बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, तीसरा मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, जी तो तीन मेथड्स ऑफ कुकिंग वो बताती है। लेकिन वो इस बात से भी कॉन्शियस हैं कि वो नॉर्थ इंडिया की, वो माथुर है, और इसीलिए एक खास तरह के सेटिंग में ये तीन मेथड्स हैं। लेकिन आप बंगाल में चले जाएंगे तो वहां पे मछली का प्रचलन बहुत है, तो मछली में कुलीन कायस्थों में मछली का अलग अलग तरह का आपको प्रिपरेशन मिलेगा। असम चले जाएं तो डक्स खाने की परंपरा है वहां, तो वो एक उसका प्रिपरेशन अलग है। चंद्रसेनी कायस्थों में चले जाएं, बॉम्बे में कायस्थ पंगत एक बड़ा सुंदर रेस्टोरेंट है वहां विले पार्ले में, वहां पर मैं गया, दंग रह गया कि कम से कम वो प्रॉन के प्रिपरेशंस थे उनके पास, क्रैब के प्रिपरेशंस थे, उसके तरह मछलियों जो सी फिश
कम से कम 10 तरह की थी। तो ये वैरायटीज उनकी जो है वो अद्भुत है। और अगर आप एक ऑल इंडिया कायस्थ फूड फेस्टिवल करें हाँ, तो आप जो माने किसी कम्युनिटी को मैच करना मेरे ख्याल से बहुत आसान नहीं होगा, इतनी बिल्कुल सर, वैरायटी। बिल्कुल। जी उदय जी, अभी फिलहाल आप किस नए राइटिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? कुछ शुरू किया हुआ है आपने? जी, मैं एक्चुअली 2-3 प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में साथ साथ चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट काफी समय से मैं एक्सपेरिमेंट नॉवेल जोनर में जाना चाहता हूँ, और मुझे मौका मिला था एक समय में बुद्ध पे काम करने का, और ओके। करीब करीब 2 साल मैंने जी। बुद्ध जहां जहां गए मैं हम्म। उनके पीछे पीछे वहां वहां गया। अच्छा। तो उसी दरमियान जो बुद्ध के जीवन में मैंने देखा 4 महिलाएं आई, तो जी। 3 तो ओवर स्टेटेड हैं या स्टेटेड हैं प्रॉपर्ली, ओके। डॉक्यूमेंटेड हैं। राइट। एक नदारद है, सुजाता। सुजाता के खीर का स्मरण शायद आपको भी हो, जी। चर्चा जी। होती है। हाँ। बट सुजाता इज अ क्वाइट एन अंडरस्टेटेड कैरेक्टर इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ओ। और मुझे अपने आप में वो बहुत जो बुद्ध के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया जी। जी। उसमें सुजाता का बड़ा इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा, ओके। और वो उन बारीकियों को मैं निकालना चाहता हूँ। ये प्राइमरली एक लव स्टोरी के तौर पे मैं उसको देखता हूँ, ओके। क्योंकि दुनिया में 2 ही इमोशंस हैं जो आदमी को मेजरली ड्राइव करती हैं, एक है फियर और एक है लव। ला। और अगर आप पूरे वर्ल्ड के सिनेमा को डाइसेक्ट करें जी। तो आपको लगेगा कि प्राइमरली इन 2 इमोशंस के इर्द गिर्द ही सभी कुछ आपको है। मेजॉरिटी फिल्म्स मिलेंगी। Right. तो लव एक बहुत पॉजिटिव फोर्स है, और उसने बुद्ध को भी प्रभावित किया और बहुत पॉजिटिव सेंस में किया। और वो सुजाता कौन थी, क्या थी, ये रिलेशनशिप कैसे बिल्डअप हुआ, Yeah. उसकी लेयर्स क्या थी, ये अनस्टेटेड है, अंडरस्टेटेड है, या मैं कहूंगा अनस्टेटेड है। उसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ एक नॉवल वंडरफुल फॉर्म में। उस वंडरफुल पर सर। मैं काम कुछ सालों से कर रहा हूँ, जी। जी। लेकिन वो इट विल टेक टाइम। Wow, sir, that's excellent. Uday ji, thank you very much for your time, and we wish you all the best for your next project. और ये आपका कायस्थ encyclopedia, I think it's a wonderful thing which has been, given to given back to the society, and I wish you all the best, sir. Thank you. Thank you. नहीं, thank you, Atul ji. You gave me this important platform. I've been watching your program जी। for some time now, and you are doing a great job by bringing out something very unique, which is going on around. Even not only this book, all programs of yours are very fascinating. I wish you all the best, and thank you very much once again, and thank you to the audience as well. Thank you, sir. Thank you very much.